Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. In this lecture, I am going to tell you the calculation of current. In my previous lecture, we have studied drift velocity. How we calculate drift velocity, it was on my previous lecture. In this lecture, we will take a conductor and we will add this conductor to a battery. The positive terminal of battery will be connected with A and the negative terminal of the battery will be connected with point B. Now, I am showing to you just those velocities component which are responsible for the current. We know in the state of constant potential difference of conductor, the electrons, every electrons will have managed random motion. ये मैंने आपको बताया था. Every electrons in the state of connected with battery will have random managed motion. There will be two component of velocity. One was its own velocity and the second was due to the presence of the electric field. The name of this velocity is drift velocity. It means in this figure I am showing you just drift velocities of every electrons. Clear? Now let's assume the cross-sectional area of this conducting wire is A, length of the wire is L, number of free electrons in unit volume. It means free electron density is small n. Number of electrons in unit volume means free electron density is n. These are the constant which we will have to assume. Now let's assume electrons enter in the cross section at point P at any instant. Let's assume t बराबर 0. Electron starts entering in this cross section which is at point P, and after dt time and after in dt second they reaches at cross section at point Q. After dt second those electrons reaches at point Q at the cross section which is at point Q. मतलब कुछ electrons P से enter करते हैं और dt सेकंड में Q क्रॉस सेक्शन तक पहुंच जाते हैं. क्लियर? ये मैं मान लेता हूं dt सेकंड में ऐसा होता है. नाउ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन में, ये शेडेड रीजन है जो उसने स्वैप किया है, जो इलेक्ट्रॉन्स आगे गए हैं जिस रीजन में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मैं बोलूंगा उसका वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू ये डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितनी आएगी? Vd इंटू डी टी. जितना dt समय में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आगे जाएगी, Vd इंटू डी टी, ये आएगा वॉल्यूम इंटू स्मॉल n. इतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है. तो मैं लिखूंगा नाउ द टोटल चार्ज इन शेडेड रीजन, वो कितना आएगा? ANEVD इंटू डी टी. dt सेकेंड में इसमें टोटल चार्ज इतना आया. मतलब क्रॉस सेक्शन P पर dt सेकेंड में इतना चार्ज एंटर किया. यही तो मतलब है इस बात का. इट मीन्स चार्ज एंटरिंग in cross section P in unit time. कैसे आएगा? ये dt सेकंड का है. ANEVD इंटू डी टी अपॉन डी टी. समझे? ये dt समय में एंटर करने वाला चार्ज है. ये जो चार्ज आएगा ये dt सेकंड में एंटर करने वाला चार्ज है. तो यूनिट सेकंड में कितना आएगा? अपॉन dt. तो dt से dt गया, बचा क्या? चार्ज एंटरिंग इन क्रॉस सेक्शन P इन यूनिट टाइम. बोले तो करंट फ्लोइंग थ्रू वायर वही होगी जो ये है. हर एक क्रॉस सेक्शन से करंट वही फ्लो करेगी जो वायर में करंट फ्लो करेगी. समझे? वायर में जो भी करंट एंटर करेगी वो हर एक क्रॉस सेक्शन से एंटर करेगी. तो मैंने पी क्रॉस सेक्शन पे करंट ये निकाला,
ये करंट कैसे आया, क्योंकि dt समय का इतना चार्ज एंटर करता है तो 1 सेकंड में कितना करेगा अपॉन dt, यूनिटरी मेथड, dt में इतना तो 1 सेकंड में कितना अपॉन dt किया तो मैंने क्या आएगा NEVDA, ये फाइनल करंट आ गया मेरे पास। मतलब जो मुझे कैलकुलेशन ऑफ करंट करना था किसी वायर में वो ये आएगा, करंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी I बराबर NEVDA, ये आएगा। तो एक तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, समझे। यहां अगर अब बात की जाएगी करंट डेंसिटी पे, करंट डेंसिटी I बाय ए, इसका नाम देते हैं इक्वेशन ए, तो लिख देता हूं बाय इक्वेशन ए, बाय इक्वेशन ए। इक्वेशन ए से लिखा जा सकता है I बाई ए बराबर NEVD, और इसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। यूनिट सरफेस एरिया से फ्लो होने वाली करंट, करंट डेंसिटी, समझे ना। करंट डेंसिटी क्या होती है, द करंट फ्लोइंग perpendicularly the current flowing perpendicularly through unit area of given surface is called current density associated with that surface। मान लेते हैं कि ये एक सरफेस दिया गया है मेरे को, ये एक सरफेस है मेरे पास, ये सरफेस है ABCD, ये सरफेस है ABCD। थोड़ा सा और सही बना देता हूं, ABCD। अब इसमें जब करंट एंटर होगी इस एरिया में, वो अगर हर एक सरफेस के पॉइंट पर यूनिफॉर्म है, यानी पूरे एरिया में करंट यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, जैसे ये एरिया है बोर्ड का, इस पूरे बोर्ड के एरिया पर टोटल 100 एम्पियर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो करंट डेंसिटी क्या आती है, टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया, ऐसे। क्लियर। और यदि मान लेते हैं कि इस पूरे सरफेस पर, जो ये सरफेस है बोर्ड का, इस सेगमेंट में 25 एम्पियर, इस सेगमेंट में 5 एम्पियर, यहां 10 एम्पियर, यहां 5 एम्पियर, मतलब डिस्क्रीटली फॉर्म में फैली हुई है, समझे ना। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कहीं ज्यादा डेंसिटी है, कहीं ज्यादा करंट फ्लो कर रही है अंदर की और कहीं कम है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो उस केस में हम करंट डेंसिटी कैसे लिखते हैं, DI बाई DA, समझे ना। ये इंस्टेंटेनियस, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर छोटे सा एरिया, छोटा सा एरिया क्या होगा, पॉइंट, तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट की करंट डेंसिटी होगी, एट पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे dt क्या होता है, एक इंस्टेंट होता है, ऐसे DA क्या होगा, एक पॉइंट होगा, छोटा सा पॉइंट, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की डेंसिटी लिखेंगे फिर हम वहां। फिर I बाई ए क्या हो जाएगा, एवरेज डेंसिटी हो जाएगी वहां, अगर करंट डेंसिटी, करंट नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इफ, तो इसको पहले इसको लिख देता हूं, ऊपर वाला क्या होगा, इफ ये क्या होगा, इफ करंट is
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड over the surface. तो I अपॉन सरफेस एरिया, उस सरफेस की क्या आ जाएगी, करंट डेंसिटी आ जाएगी। और यदि J बराबर di बाई dA कब होगा, यदि यानी इफ करंट इज नॉट distributed uniformly over the surface, तब ये किसी एक पॉइंट की सरफेस पर छोटे से एरिया की, समझे ना, डीए बोले तो बहुत छोटा एरिया यानी एक पॉइंट, तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन की डेंसिटी आएगी, उस स्टेट में किसी पर्टिकुलर लोकेशन की करंट डेंसिटी आएगी डी आई बाई डी ए। समझ में आई बात? तो इसको हम इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी भी बोलेंगे। इंस्टेंटेनियस नहीं बोलना चाहिए, किसी पर्टिकुलर लोकेशन की बोलना चाहिए। किसी पर्टिकुलर लोकेशन की डी आई बाई डी आएगी और ये आएगी पूरे सरफेस की। समझे? इसकी वैल्यू क्या आई यहां से इक्वेशन ए से, एन ई वी डी। अभी मैं मान के चल रहा हूं इसमें करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां मैं मान के चल रहा हूं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए आई बाई ए को मैं क्या बोल रहा हूं, एनईवीडी, मतलब करंट डेंसिटी। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये करंट डेंसिटी कौन सी आएगी, जो पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? ये वो केस नहीं है, लेकिन कुछ केस ऐसे भी होंगे जहां करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, वहां ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। मैक्सिमम क्या होता है, करंट डेंसिटी मतलब करंट यूनिफॉर्मली सरफेस पर फैली होती है, तो पूरे सरफेस की करंट डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है। मैक्सिमम यही होता है, आई बाई ए, करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो हम कहां तक आ चुके थे, यहां तक करंट डेंसिटी। समझे? इसको मैं हटा देता हूं। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये लिखेंगे हम यहां, ये लिखेंगे करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन वो डायरेक्शन होगी जो करंट की डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। तो लिखता हूं यहां करंट डेंसिटी is vector quantity. Its direction will be the direction of current flow. Its direction will be the direction of करंट फ्लो। क्लियर? अब देखो बाय इक्वेशन ए मैं कहां तक आ चुका हूं, जे बराबर एन ई वी डी तक आ चुका हूं। अब वी डी की वैल्यू क्या होती है, एन ई वी डी क्या होता है, ई इंटू ई बाय इंटू टॉ अपॉन 2m। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, हम जानते हैं, तो वो वैल्यू मैंने यहां पुट कर दिया। वी डी बराबर ई कैपिटल ई टॉर्क बाय 2me। वी नो दिस फैक्ट। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ वी डी इन दिस इक्वेशन। नाउ जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉ बाय 2me into e. In this equation, n is a constant which depends on material of the wire. E is a constant. Me, mass of electron, is a constant. 2 is a constant. Tau also is a constant which depends on material of wire. Here are two constants, n and tau. N and tau are those constants which depend on the type of material of wire. Material वायर के मटेरियल का क्या प्रकार है, किस टाइप का मटेरियल है, उस पर डिपेंड करता है एन एंड टॉ। क्लियर? तो मैं ये बोलूंगा कि ये कंप्लीटली एक कांस्टेंट है। ये क्या है, एक कांस्टेंट जिसका नाम क्या होता है,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और इसको शो करते हैं लोग सिग्मा से। तो मैं J बराबर लिख देता हूं सिग्मा इंटू ई। समझे, ये भी लोग फॉर्मूला याद रखते हैं, J बराबर सिग्मा इंटू ई। क्लियर। जो ओम्स लॉ हम पढ़ते हैं, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यही होता है, J बराबर सिग्मा इंटू ई। क्लियर। आप बोलोगे सर ओम्स लॉ तो V बराबर आई आर होता है, नहीं, यही ओम्स लॉ होता है। इसका एक एप्लीकेशन है ओम्स लॉ, मैं प्रूव करूंगा ये बात बाद में। क्लियर। अभी धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं। ये इक्वेशन, ये जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी से जो करंट आई थी, इस करंट की इक्वेशन से मैं धीरे धीरे कौन कौन सी इक्वेशन ड्राइव कर रहा हूं, आप ये याद रखेंगे। यहां तक आ चुका हूं मैं। अब देखो, इसमें यदि जो वायर था मेरे पास, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A था और ये लेंथ L थी। क्लियर। इसकी कंडक्टिविटी रो मान लेता हूं, सिग्मा मान लेता हूं, और रेजिस्टिविटी रो मान लेता हूं। एक कांस्टेंट होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जिसको हम कहते हैं रो। ये 1/सिग्मा होता है। अगर सिग्मा कांस्टेंट है तो रो भी कांस्टेंट होता है। क्लियर। तो इस वायर के लिए, ये मेरे पास एक वायर है, सिलेंड्रिकल वायर AB। इस वायर के लिए ये रिजल्ट आया है, J बराबर सिग्मा इंटू ई। तो अगर मैं इस वायर के लिए इक्वेशन B को अच्छे से लिखूं तो I बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया सिग्मा इंटू ई क्या आएगा, A और B के बीच मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इसके अंदर, वो कैसे लिख सकता हूं मैं, वो लिख सकता हूं VAB, A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ L। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। E बराबर क्या होता है, डेल्टा V बाई डेल्टा L का मोड। अगर मैं मैग्नीट्यूड यूज करना चाहता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, तो मैंने वही किया। A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, बैटरी का EMF यानी V। VAB मैंने V लिया था, तो वैल्यू यहां पुट करूंगा मैं। तो I बराबर क्या आएगा, सिग्मा इंटू A बाय L इंटू V। क्लियर। अब इस इक्वेशन में आप ऐसे लिख सकते हो, V बराबर L सिग्मा इंटू A इंटू I, यानी V बराबर I इंटू R, और R को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। R को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। जो करंट होती है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पोटेंशियल डिफरेंस जितना बड़ा आएगा करंट उतनी बड़ी आएगी, और यहां जो कांस्टेंट आएगा उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। R इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ वायर। और इसकी वैल्यू क्या आई, L बाई सिग्मा A या रो इंटू L बाई ए, लोग ऐसे याद रखते हैं। तो R की वैल्यू क्या है हमारे पास, रो इंटू L बाई ए। अब ध्यान से सुनेंगे आप, जो सिग्मा है, सिग्मा वो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, इसलिए रो भी मटेरियल पे डिपेंड करेगा। 1/सिग्मा है, इसका मतलब रो भी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। लेकिन इस रेजिस्टेंस में ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी, और R क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। समझे। तो R क्या है, रो इंटू L बाई ए। R आ रहा है रो इंटू L बाई ए। लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो शेप पे भी डिपेंड करता है। शेप साइज इस वायर का क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है। और जो रो है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो वायर है ये किस चीज का बना हुआ है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, आयरन का है। रो इस चीज पे डिपेंड करेगा, समझे। लेकिन रेजिस्टेंस रो पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, मतलब किस मटेरियल का है इस बात पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, और साथ साथ में इस पे भी करेगा कि लेंथ और एरिया कितना है। तो R जो है वो मटेरियल प्लस शेप साइज प्रॉपर्टी है, लेकिन रेजिस्टिविटी रो ओनली मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, समझे। केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है रो, और R शेप साइज और मटेरियल तीनों पे डिपेंड करता है। तो ये चीज आप
अच्छे से समझेंगे। मैंने अभी आपको J बराबर सिग्मा इनटू बताया और R कैसे आता है किसी वायर का ये बताया, इसको ध्यान से समझें। अब मैं आपको बताऊंगा कि ओम्स लॉ इस माइक्रोस्कोपिक स्टडी से कैसे रिलेटेड है। देखो ओम्स ने जो बोला था वो बोला था कि करंट डेंसिटी एसोसिएटेड विद एनी स्पेस एरिया विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द चार्ज। किसी भी एरिया से क्रॉस करने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स है उस फोर्स के प्रोपोर्शनल इस एरिया की करंट डेंसिटी होती है, ये लिखा गया है। किसी भी एरिया से एसोसिएटेड करंट डेंसिटी इस एरिया के आर पार इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है, ये लिखा हुआ है, ये ओम्स ने बताया था। यानी और वो फोर्स कितना हो सकता है, वो फोर्स किस किस टाइप का हो सकता है, कैसा कैसा वो फोर्स हो सकता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आ सकता है, मैकेनिकली कोई उठा के चार्ज को एक साइड से दूसरी साइड ले जा रहा हो, समझे ना, किसी मैकेनिकल वे में मशीन मैकेनिकल मैकेनिज्म किसी ने बनाया हो कि इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस के आर पार जा रहे हो, या कोई केमिकल फोर्स हो, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन एक एरिया के आसपास आर पार जा सकते हैं, एक एरिया के गो थ्रू हो सकते हैं, समझे ना, आर पार जा सकते हैं केमिकल फोर्स की वजह से भी। तो किसी भी टाइप का फोर्स हो सकता है। अब उन सभी फोर्सेस का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उसकी वजह से करंट डेंसिटी आती है, ये ओम्स ने बताया था। अब हम एक इलेक्ट्रिकल करंट की स्टडी कर रहे हैं जो वायर के अंदर है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो आती है, यानी इलेक्ट्रिकल फिनोमिना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से करंट को हम स्टडी कर रहे हैं। एक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कितनी आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगी। तो मैं यहां बोलूंगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन द वायर, जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें जो फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिकल फोर्स आएगा, सिर्फ करंट डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स आएगी। तो करंट डेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं कह सकता हूं कि करंट डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और यही सेम चीज हमें पीछे पता चला था, J बराबर सिग्मा इंटू ए। सिग्मा एक कांस्टेंट था, इसका मतलब करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अभी हमारी स्टडी यही आया था, इक्वेशन यही क्या बोलती है कि करंट डेंसिटी प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वही ओम्स लॉ था। यहां से भी ओम्स लॉ वही निकल के सामने आता है, J प्रोपोर्शनल टू E, यानी J बराबर सिग्मा। यहां प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट होता है उसको सिग्मा कहते हैं, कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी, और वो सिग्मा का नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। समझे, हम ये भी बोलते हैं कि जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है उसका रेजिस्टेंस, देखें, हमें बताया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो ये होती है Ne² E टॉर्क बाई 2me, ये होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। टेम्परेचर बढ़ाने से जो टाउ होता है वो कम होता है, इलेक्ट्रॉन तेजी से टकराते हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, तेजी से टकराते हैं, इसलिए दो लगातार कोलिजन के बीच का जो समय होता है वो कम हो जाता है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ कम होता है, जिसकी वजह से सिग्मा कम होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। इसलिए ये बोला जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वायर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। दैट्स व्हाई आफ्टर इंक्रीजिंग temperature, resistance increases, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से टो कम होता है जिससे सिग्मा कम होगा, और सिग्मा कम होगा तो रो बढ़ेगा जिसकी वजह से आर बढ़ेगा, क्योंकि वायर के लिए आर बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से एल और ए पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, एल और ए पर पड़ता है लेकिन सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक्सपेंशन करेंगे कुछ मिलीमीटर तक, एल और ए में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रो में बहुत फर्क पड़ जाता है, इसलिए आर से क्या होता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान से समझेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट एक्चुअली किस चीज़ पे हुआ, तो उसने रेजिस्टेंस किस प्रकार से चेंज किया, समझे।